हेलो एवरीवन। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस द प्रैक्टिस सेट नंबर 16। क्यूबीआर वाला सेट है। ठीक है, इट्स अ क्यूबीआर सेट। स्टोरी इज रिवॉल्विंग अराउंड सम टेस्ट हैविंग वाइवा मार्क्स एंड रिटन एग्जाम मार्क्स। ठीक है, चलो लेट्स हैव अ लुक एट द सेट एज यूजुअल। फर्स्ट विल गो थ्रू द सेट। ठीक है, विल गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस and then we'll go through the questions and then we'll decide our solution and then we'll start with। ठीक है, चलो देखते हैं। what we have, 6 friends, fine, comprising, ठीक है, physics assessment comprising of 2 components, okay, viva which is out of 10 marks, written exam which is out of 20 marks। ठीक है, the final score for each student was the sum of their marks in both components, okay, no two friends had the same total score। देखो यहाँ पे many a times you will be having a hidden condition within the main paragraph। इंस्ट्रक्शन वाला जो पैराग्राफ होता है, मेन पैराग्राफ जो होता है स्टार्टिंग का, उसी के अंदर कभी कभार क्या होता है, कैट हैज अ हैबिट ऑफ हाइडिंग वन और टू कंडीशंस विद इन द पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, विच जनरली स्टूडेंट्स मिस आउट। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या हिडन कंडीशन है, टोटल स्कोर जो होगा किसी भी दो फ्रेंड का, मतलब सबका टोटल स्कोर क्या होना है, डिफरेंट होने वाला है, राइट। ऑल द टोटल स्कोर आर टू बी डिफरेंट। देन the scores that all the friends received in both the components were positive integers। what do you mean positive? what is the obviously score positive में ही आएगा, negative में कभी आएगा क्या score? until unless you have a negative plus minus, मतलब plus for a correct and negative for a wrong, until unless you have that, negative तो कभी आएगा नहीं, तो positive क्यों दे रहा है यहाँ पे? why it's mentioning positive integers? because positive integers मतलब zero नहीं आ सकता। zero is neither positive nor negative, right? and zero is a multiple of everything, remember that। Suppose it is saying a multiple of 5, multiple of 5 में 0 भी आता है, but if it says positive multiple of 5 और multiple of 5 which is a positive integer, तो वहां पे 0 नहीं आएगा। ठीक है, so positive integers means we do not have a 0 over here। ठीक है, so all more than 0 starting from 1 on henceforth। ठीक है, चलो, तो सारे स्कोर्स जो हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ओके, देन व्हाट वी हैव, अच्छा, फिजिक्स वाइवा रिलेटेड कुछ कंडीशंस हैं। सो लेट्स हैव द फ्रेंड्स ओवर हियर। हु आर द फ्रेंड्स? ए बी सी डी ई एफ कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ए बी सी डी ई एफ, फाइन। सो हियर आई हैव वाइवा एंड हियर आई हैव रिटन एग्जाम। चलो, लेट्स हैव द टेबल। we'll have the viva table and written exam table वहीं पे। ठीक है, चलो let's start filling it up। let's me change the color to black। done। only 2 friends secured even numbered scores। तो वाइवा में टोटल कितने स्कोर्स आने वाले हैं? 6, राइट। तो 6 में से 2 इवन होंगे, राइट। तो वाइवा में यहां लिख देता हूं 2 इवन। ओके, देन व्हाट वी हैव, दिव्या's viva score was twice that of Bhavna's। तो यहां पे मेंशन कर देते हैं, दिव्या is equals to twice that of Bhavna। Can I conclude Divya's score has to be even? क्योंकि twice of something, right? So Divya's score has to be even। चलो, ये तो एक even confirm हो गया। Done। Farhan received the lowest viva score and it was an even number। तो फरहान का स्कोर जो है लोएस्ट है and it was also a even number। Done। Divya scored more than Isa in the Viva। Divya scored more than Isa in the Viva। Okay। Chirag scored the highest marks in the Viva round। Chirag scored the highest marks in the Viva round। Highest। ठीक है, done। All 6 friends had distinct Viva scores। तो all distinct or different? Distinct or different। ठीक है। Now, ठीक है, we can go ahead and ठीक है, एक बार ये ले लेते हैं, रिटन एग्जाम के कंडीशंस ले लेते हैं। ठीक है, all friends received distinct scores। all friends received distinct scores। written में भी सबका distinct होने वाला है, different। ठीक है, okay। then everyone scored more than 50% marks and only 2 got even numbered scores। तो यहां पे भी 2 even, right। and all the scores have to be more than 50% means what? 10 plus, या फिर लिख देते हैं 11 या 11 से ज्यादा, 11 और more। ठीक है, ओके। दिव्या टॉप बाय सिक्योरिंग द हाईएस्ट स्कोर इन द रिटन एग्जाम। तो हाईएस्ट स्कोर रिटन एग्जाम में किसका आया? दिव्या का आया। ठीक है, ओके। एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स रिसीव्ड रिटन एग्जाम स्कोर्स दैट वर ट्वाइस देयर वाइवा स्कोर्स। अच्छा, ये कंडीशन हम होल्ड पे रखते हैं, ये कंडीशन हम वाइवा के आने के बाद
देखेंगे, और फिर बाद में टोटल के लिए कुछ कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो वी वेंट थ्रू द कंडीशंस, इंस्ट्रक्शन हमने देख लिया अच्छी तरह से, वी वेंट थ्रू द कंडीशन, हैड सम इनिशियल एनालिसिस। एक बार क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं, क्या पूछ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द फाइनल स्कोर्स ऑफ द 6 फ्रेंड्स पुट टुगेदर, ओके, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन में है, ठीक है। Whose final score is the third highest? Direct. Score of Bhavna in physics, direct. Final score of Isa, direct. Maximum difference between the final scores of any two friends. अच्छा, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो मिनिमम स्कोर जो आएगा और मैक्सिमम स्कोर जो आएगा उसके बीच में डिफरेंस होगा, दैट विल बी द मैक्सिमम डिफरेंस, ठीक है। तो ओवरऑल क्वेश्चन से हमें आइडिया लग रहा है कि डेफिनेट सिनेरियो निकलने वाला है, तो कोई दिक्कत यहां पे नहीं होगा, ठीक है। लेट्स फोकस ऑन वाइवा। Viva, the score is out of 10 marks. Viva, the score is out of 10 marks. ठीक है, okay. And it is said that 2 even. So I am focusing on Viva now. यहाँ पे Viva. So it is saying 2 even. That means what? Remaining 4 odds. Remaining 4 odd values. तो 4 odd values. ठीक है, 1 से लेके 10 तक. 1 से लेके 10 तक. What are the odd values we have? 1, 3, 5, 7 and 9. Right? But can I have one possible over here? Odd value 1, not possible. Reason? Reason, F is having the lowest Viva score and that lowest number is even. मतलब जो भी odd value, पहला odd value, lowest odd value जो भी होगा, इससे बड़ा ही होगा, इससे बड़ा ही होगा. तो 1 cannot be considered over here as a odd score in case of Viva, क्योंकि the lowest score is even. ठीक है, we cannot have the lowest score as odd. And we have already discussed no one is getting 0 over here. ठीक है, that means the lowest odd score has to be 3. So that means the even score, one of the even score that F is going to get in Viva has to be less than 3, and that is only possible in case of 2. Are you getting your point? In case of 2. So the only option that the lowest score as well as it has to be even, that means F, Farhan, has to get a score of 2. ठीक है. Now we know there will be 2 even scores. एक तो 2 आ चुका है और एक स्कोर बाकी है, ठीक है. And if you recall, in Viva we had that Divya's score was twice that of Bhavna. So Divya also it has to be even. So 2 even हो जाएंगे, एक तो फरहान का और एक दिव्या का. That means Bhavna has to be odd value. And Bhavna has to be odd value. And भावना का डबल जो है दिव्या पे आने वाला है. तो भावना का जो स्कोर है 3, 5, 7, 9 में से कुछ हो सकता, और उसका डबल जो है दिव्या के स्कोर यहां दिव्या के लिए आने वाला है, राइट. अच्छा, भावना का 3 हुआ तो यहां पे 6, विच इज पॉसिबल. भावना का 5 हुआ तो यहां पे 10. इज इट पॉसिबल? कैन आई हैव 10 ओवर हियर? क्या हम यहां पे 10 ला सकते हैं? नहीं ला सकते. रीजन बीइंग बिकॉज ये जो 6 या 10 जिसका भी होने वाला है, ये किसका है? हु इज द पर्सन ओवर हियर? द पर्सन इज दिव्या. द पर्सन इज दिव्या. एंड इफ दिव्या गेट्स 10, दिव्या विल बी गेटिंग द हाईएस्ट स्कोर देन इन वाइवा. But who is getting the highest score in Viva? Chirag is getting the highest score in Viva. तो क्या यहाँ पे 10 possible है? It's not possible over here, right? That means 10 तो possible है नहीं, और आगे हम चेक करेंगे भी नहीं 7 और 9 के लिए, क्योंकि वो तो 10 क्रॉस ही कर जाएगा, right? So the only option for Divya is 6. That means Bhavna is getting 3, right? Bhavna is getting 3 and Divya is getting 6. चलो fill in कर देते हैं. Bhavna is getting 3, Divya is getting 6. ठीक है? Okay. And the highest score goes to Chirag. So Chirag is getting 9. ठीक है? And in Viva we had that Divya is getting more score than Isa. So Divya is having 6. So 6 has to be more than Isa. That means Isa's score has to be less than 6. अच्छा, less than 6, what are the values we have? 2, 3, 5. 2, 3 तो already हो चुका है assign. That means here I have 5. And with the last value remaining for Viva? 7. So 7 goes to Aman. 7 goes to Aman. Viva score is done. Viva score is done. ठीक है, अब आ जाते हैं रिटन एग्जाम पे. ठीक है, तो वाइवा का मैं यहां पे निकाल रहा हूं. वाइवा आई एम क्लीनिंग आउट. सो विल हैव द सिनेरियो ऑफ रिटन एग्जाम. ठीक है, सो रिटन एग्जाम इफ यू ऑब्जर्व अगेन सेम 2 इवेंट्स एंड 4 ऑड्स, एंड ऑड्स में 11 या प्लस. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 11, 13, 15, 17 or 19. So we have 5 values. Out of these 5 values, 4 values will be considered. ठीक है, और 2 इवन में आएंगे. कौन से 2 इवन में आएंगे? ध्यान से याद करो. फोर्थ कंडीशन ऑफ रिटन एग्जाम. क्या था फोर्थ कंडीशन ऑफ रिटन एग्जाम? Exactly 2 students received written exam scores that were twice their Viva scores. तो obviously twice हो रहा है कोई वैल्यू का, मतलब both of them has to be even scores. Both of them have to be
इवन स्कोर्स। ठीक है, चलो रिटन एग्जाम के लिए मैं यहां पे रेड ले लेता हूं। ठीक है, अब देखते हैं ट्वाइस करके कौन कौन सा ट्वाइस हो सकता है। अच्छा, अमन हो सकता है क्या ट्वाइस 14? हाँ पॉसिबल है। भावना का ट्वाइस हो सकता है क्या? 3 का ट्वाइस मतलब 6, नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑल द स्कोर्स हैव टू बी 11 और मोर देन 50% बोला था हमें, राइट? मोर देन 50% हमें बोला था कि रिटर्न एग्जाम में सबको 50% से ज्यादा ही मिला है। तो भावना का जो ट्वाइस का सिनेरियो वो पॉसिबल नहीं होगा। दैट मींस यहां पे लिख देते हैं भावना का ऑड वैल्यू आएगा, भावना का ऑड वैल्यू आएगा। अच्छा, चिराग का 9 का डबल दैट इज 18 पॉसिबल? हाँ पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। इसका 6 का डबल 12 ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दिव्या का रिटन एग्जाम में हाईएस्ट बोला है। कैन 12 बी द हाईएस्ट स्कोर? एंड वी नो दैट ऑल द स्कोर्स हैव टू बी 11 एंड मोर एंड ऑल ऑफ देम हैव टू बी डिफरेंट। नॉट पॉसिबल, राइट? तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ईसा का 5 का ट्वाइस 10 नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहां पे भी लिख देते हैं ये ऑड दिव्या का, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। ट्वाइस, ये भी ट्वाइस पॉसिबल नहीं, ये भी ऑड। और 2 का ट्वाइस 4 आएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 11 से ज्यादा होना चाहिए रिटर्न एग्जाम, तो ये भी ऑड। मतलब जो दो ट्वाइस होने वाले हैं दे आर अमन एंड चिराग। ठीक है, सो अमन का स्कोर हो गया 14, चिराग का स्कोर हो गया 18। नाउ सी हियर, वी नो दिव्या इज गेटिंग द हाईएस्ट इन रिटन एग्जाम, तो डेफिनेटली दिव्या का जो स्कोर होगा 18 से ज्यादा ही होने वाला है। तो 18 से ज्यादा एक ही स्कोर है, दैट इज 19, दैट इज 19। ठीक है, ठीक है, डन। नाउ आउट ऑफ द रिमेनिंग ऑड वैल्यूज 11, 13, 15 एंड 17 किसको क्या असाइन होगा, दैट वी हैव टू चेक आउट, दैट वी हैव टू चेक आउट। तो ये 4 वैल्यू मेरे बचे हैं। ठीक है, कहीं भी लिख के रखते हैं, दीज आर द 4 वैल्यूज रिमेनिंग 11, 13, 15 एंड 17 फॉर रिटन एग्जाम, फॉर रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम के ये 4 वैल्यूज बचे हुए हैं। किसको क्या जाएगा नहीं पता है। अभी क्या एनालिसिस बाकी है फाइनल का, क्योंकि अभी तक और कुछ कर नहीं पाएंगे। किसको कौन सा जाएगा, वी डू नॉट हैव एनी मोर कंडीशंस, वी डू नॉट हैव एनी मोर कंडीशंस। नाउ वी हैव टू लुक एट व्हाट दी फाइनल का जो टोटल का जो कंडीशन है उसको लेके आते हैं। ठीक है, तो टोटल को क्या कंडीशन है टोटल का, ईसा's total score, okay, exactly the average of the total scores of दिव्या and फरहान। So दिव्या प्लस फरहान का एवरेज, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं दिव्या प्लस फरहान का जो भी टोटल आएगा has to be twice of ईसा, has to be twice of ईसा, राइट? ठीक है, अब ईसा के व्हाट आर द पॉसिबल टोटल्स? द पॉसिबल टोटल्स ऑफ ईसा आर 11 plus 5 16 और 13 plus 5 18 और 15 plus 5 20 और 17 plus 5 22, क्योंकि इन्हीं में से ही कुछ जाएगा ना रिटर्न एग्जाम में ईसा को। ठीक है, ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यूज फॉर ईसा, पॉसिबल वैल्यूज फॉर ईसा एंड देन विल राइट द 2e वैल्यू ओवर हियर। यहां पे ईसा के पॉसिबल वैल्यूज लिख लेते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ईसा, मतलब रिटर्न एग्जाम में, रिटर्न एग्जाम में। ठीक है, रिटर्न एग्जाम में क्या क्या पॉसिबल है वो तो हम दिख रहा है 11, 13, 15, 17। तो ईसा का टोटल यहां रखते हैं पॉसिबिलिटी में। ईसा का टोटल क्या क्या टोटल हो सकता है, 5 प्लस 11 16 टोटल हो सकता है, तो 2e कितना हो जाएगा 32। देन 5 प्लस 13, 5 प्लस 13 कितना हो जाएगा 18, 18 मतलब यहां पे कितना आ जाएगा 36। अच्छा, देन 5 प्लस 15 20, तो मतलब यहां पे कितना आ जाएगा 40। ओके, देन 5 प्लस 17 22, तो यहां कितना हो जाएगा 44, सॉरी 22, तो टोटल विल बी 22 एंड ट्वाइस विल बी 44। ठीक है, क्या हमें दिव्या का टोटल पता है? हाँ, दिव्या का टोटल तो हमें पता है, दैट इज 25। ठीक है, तो दिव्या टोटल वी नो, ऑलरेडी नो, तो दिव्या टोटल इज 25। यहां पे लिख लेते हैं 25। ठीक है, फरहान का क्या है, 2 ऑलरेडी है, 2 प्लस समथिंग, राइट? 2 प्लस समथिंग, लेट्स से 2 प्लस x। ठीक है, सो अभी x के वैल्यूज क्या क्या होंगे वो हमें देखना है। अच्छा, फर्स्ट सिनेरियो we are writing the possible values of x, possible values of x, first scenario। तो फर्स्ट सिनेरियो में टोटल हमें कितना चाहिए 32, 25 प्लस 2 27 ऑलरेडी है, 27 ऑलरेडी है, तो x के लिए मुझे क्या चाहिए 32 के लिए x शुड बी 5। इज इट पॉसिबल x टू बी 5? नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि x मींस व्हाट, रिटन एग्जाम में जो स्कोर आएगा x इज व्हाट, रिटन एग्जाम में उसका जो भी स्कोर आएगा। ठीक है, दैट इज x। तो रिटन एग्जाम में 5 आ सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। देन 36, 27 ऑलरेडी हो चुका है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 9, ये भी नॉट पॉसिबल। अच्छा, 40 27, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 13, x का वैल्यू 13, हाँ ये फिजिबल है। 13 अपने पास है क्या? हाँ है 13 अपने पास। देन 44 27 x का वैल्यू क्या हो जाएगा 17, ये भी फिजिबल है।
ये दोनों अपने पास है, 13 भी अपने पास है एज वेल एज 17 भी अपने पास है, ठीक है। अभी एक बार ईसा की तरफ चलते हैं, तो हमने ये दोनों सिनारियो तो कैंसिल कर दिए। नाउ व्हेन ईसा's टोटल इज 20, ईसा का जो रिटन एग्जाम का स्कोर है, ईसा का जो रिटन एग्जाम का स्कोर है वो हम कितना ले रहे हैं, 15 ले रहे हैं, तभी 5 + 15 विल बी 20। तो यहां पे 13 और यहां पे 15, फिजिबल, यस फिजिबल। अच्छा, जब ईसा का टोटल 22 आ रहा है, तो ईसा को हम रिटन एग्जाम में कितना दे रहे हैं, रिटन एग्जाम में उसको 17 दे रहे हैं। Here also 17 and here also 17, not possible because all of them are going to get different scores in written exam. Distinct हमें clearly यहाँ पे बोला गया था different, right? तो ये आपका 17 का जो scenario ये cancel हो गया. That means the only feasible scenario is Isa getting 15 in written exam, right? And Farhan getting 13 in written exam. Done. तो 13 हो गया, 15 चला गया, अब बचा क्या, 11 and 17. तो रिमेनिंग इज 11 और 17। ठीक है, तो मतलब भावना को इधर रिटन एग्जाम में 11 मिलेगा या 17 मिलेगा। अब ये कौन हेल्प करेगा, हमें तो कंडीशन और है नहीं अपने पास। नाउ सी द ट्रैप इज इन द मेन कंडीशन, ऊपर पैराग्राफ में मेन कंडीशन में छिपा हुआ है ट्रैप। नो टू फ्रेंड्स हैड द सेम टोटल स्कोर, कोई भी दो फ्रेंड्स का टोटल स्कोर, मतलब सबका टोटल स्कोर क्या होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है। दैट इज द ट्रैप हिडन देयर, जो लास्ट में आपको पूरा हेल्प करेगा लास्ट सॉर्ट आउट करने में। सो हियर आई हैव टोटल एज 21, हियर माय टोटल इज 27, हियर माय टोटल इज 20, हियर माय टोटल इज 15। अच्छा देख लेते हैं, अगर मैं यहां पे 11 डाला तो यहां टोटल 14 आएगा जो कि फिजिबल है, बट अगर मैंने यहां पे 17 डाला, 17 डाला, तो मेरा टोटल 20 आ जाएगा, जो पॉसिबल है नहीं क्योंकि ईसा का ऑलरेडी टोटल 20 आ चुका है। That means here I'll have 11, here my total will be 14. Clear? That completes your entire solution. Be careful, cat does that एक बार नहीं, दो बार नहीं, repeatedly करता है, ठीक है। तो जो मेन पैराग्राफ होता है उसके अंदर there will be hidden conditions, तो you need to be careful about it. You need to be careful about it. ठीक है, चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। First question, what is the sum of the final scores of the 6 friends put together? Final scores put together. अच्छा, 21, 14 कितना हो जाएगा, 35, 35 and 25. 35 and 25 will be how much? 60, right? 60, 60 and 20, 80, 80 and 27, 107, 107 plus 15, 122. Done. Whose final score is the third highest? Third highest. Highest कौन है? 27. Okay. Second highest कौन है? 25. Okay. Third highest कौन है? 21. That is Aman. What is the score of Bhavna in physics written exam? Score of Bhavna in physics written exam is 11. That is option A. What is the final score of Isa? Total of both the components. Isa's final total score is how much? 20. Okay. What is the maximum difference between the final score of any two friends? So maximum difference means what? The difference between the highest and the lowest. टोटल स्कोर्स में, फाइनल स्कोर में। तो हाईएस्ट क्या अपना 27 है, लोएस्ट क्या है अपना 14 है, राइट। सो द मैक्सिमम डिफरेंस इज 13. सो योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 13. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, एंड यस, इफ यू लाइक द सेट, इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड डू लीव ए कमेंट कि कौन सा टाइप का आपको सेट चाहिए। जैसे प्रीवियस वीडियो में आई गॉट ए कमेंट दैट please bring a set on maximum minima. So practice set number 17 will be based on maximum minima. ठीक है, so similarly on every video, whenever you are watching any video, do leave a comment कौन सा टाइप का सेट चाहिए, which type of set or which topic set from which topic you want to practice. I'll bring in those kind of sets. ठीक है, चलो, thank you.